Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in this highly effective and precise finishing touch for your NEET 2022. As you are aware of the fact that we have done it last year also, and on the demand of students, we are going to continue this this year also. And I'm here to discuss chapters like gravitation, modern physics, current electricity, and EM waves in your physics today. Now, our question number 1. Two balls, each of radius r, equal mass and density, are placed in contact, then the force of gravitation between them is proportional to. See here, as you know that in this question we are having two masses, two balls actually having same radius and same mass, and as per Newton's law of gravitation, the force between them is, it is g. चूंकि masses उनके same है, तो it is g m1 m2 means m square divided by the distance from their centers here, that's 2r whole square. And therefore I can write here g, it is g universal gravitational constant, then mass of a body. Mass of the body is given by the formula that it's density into volume, that's 4/3 pi r cube. उनका रेडियस और उनका जो डेंसिटी है वो सेम है, therefore मास स्क्वायर है तो उस पे स्क्वायर आ जाएगा, and divided by r square. Now here you have to calculate the proportionality between force and the distance of separation between them. So it's 4r square here actually. तो यहाँ पे आप देखिए it's r is power 6 and r is power नीचे डिवीजन में r is power 2, तो मैं लिख सकता हूँ ये r is power 6 divided by r is power 2. You are left with only r is power 4. So the proportionality is f is proportional to r is power 4. It's a very important question. Option number 3 is the answer of this question. Option number 3 is the answer of this question. Question number next. Two particles of equal mass m go round a circle of radius r under the action of mutual gravitation attraction. The speed of each particle is very important question. तो see here the solution of this question is like this. Actually इस question में क्या बोला गया है कि आपके पास एक दो पार्टिकल सिस्टम है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r. तो अगर आप दो पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, बिल्कुल आपको अपोजिटिवली उनको रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस फोर्स इज ऑलवेज एन एक्शियल फोर्स एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, दिस इज द सेंटर, तो रेडियस इसका r हो गया एंड दिस इज द रेडियस. सो टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, two particles of equal masses m go round a circle of radius r under the action of mutual gravitational attraction. The speed of each particle is. अगर ये gravitational attraction की वजह से revolve कर रहे हैं in this circular orbit, therefore the necessary centripetal force should be provided here by the gravitational force. अब जो centripetal force एक मास के लिए required होता है, centripetal force होता है m, that is v square, v हमें निकालना है, divided by the radius that is r here is equal to the gravitational force of attraction is g m1 m2 that is m square divided by the distance square here, that's 2r का whole square. तो यहाँ पे आप देखिए m और m कैंसल आउट हो जाएगा, तो r जो है r एक r इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा. You are left with v square is equal to it is g m divided by it is 4r. तो 4r है यहाँ पे, तो टेकिंग रूट हियर ऑन बोथ साइड्स, v इज इक्वल 1/4 पे जो रूट आएगा तो 1/2 बाहर आएगा, इट्स रूट ऑफ gm बाई r. सो इट इज रूट ऑफ gm बाई r. सो 1/2 रूट ऑफ gm बाई r, इट्स 1/2 रूट ऑफ gm बाई r. ऑप्शन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. The value of g at a particular point is 9.8 meter per second square. Suppose the earth suddenly shrinks uniformly to half its present size without losing any mass. The value of g at the same point, assuming that the distance of the point from the center of the earth does not shrink, will be. तो मान लीजिए you are actually having a mass, earth है आपका mass m and radius r. तो सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स 9.8 आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस दिया है, एंड यू नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन 9.8. तो मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू इट इज gm बाई r square in terms of the formula. तो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सबको पता है, दैट्स 9.8, और ये न्यूमेरिकली होता है gm बाई r square. इक्वेशन फर्स्ट. अब क्या बोल रहा है कि अब अर्थ, सपोज द अर्थ सडनली श्रिंक्स यूनिफॉर्मली टू इट्स हाफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट लूजिंग इट्स मास. तो अब अर्थ का साइज जो है वो आधा हो गया, मगर मास में कोई चेंज नहीं. तो अगर आधा हो गया तो रेडियस हो गया आधा. फिर उसके बाद
तो वैल्यू ऑफ जी एट द सेम पॉइंट, तो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी एट द सेम पॉइंट। अगर आप सेम पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालोगे, अर्लियर आपके पास पूरा अर्थ था, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, वैल्यू था gm/r²। अब आपको बोल रहा है कि अगर अर्थ श्रिंक हो जाए मगर मास में कोई फर्क नहीं, मास में कोई फर्क नहीं, और आधा रेडियस में ये श्रिंक हो जाए, मतलब आधा रेडियस, तो फिर उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालिए जो अर्लियर जगह पे ही है। तो अर्लियर जगह पे है, तो अगर ये r था, इसका रेडियस अब r/2 हुआ, अर्लियर जगह रहने का मतलब है कि ये r/2 ही है, क्योंकि द डिस्टेंस जो है सेंटर से वो इस केस में r है, वो इस केस में भी r है, तो ये r/2 एंड r/2 आपको टोटल r देगा। अब बोल रहा है कि यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो फॉर्मूला यही होता है। तो मैं मानता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g', अगर चेंज हुआ है तो इट इज g, उसमें कोई चेंज नहीं, मास ऑफ अर्थ में भी कोई चेंज नहीं, ऐसा न्यूमेरिकल में लिखा है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर ली जाती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सियल फोर्स है, तो डिस्टेंस आप सेंटर टू सेंटर ही लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इट्स r/2 प्लस r/2 सो का होल स्क्वायर, r/2 प्लस r/2 हो गया r, तो g' हो गया बराबर gm/r का स्क्वायर। तो पहले केस में भी ये gm/r² ही है, दूसरे केस में भी ये gm/r² ही है, तो वी कंक्लूडेड दैट हियर दैट g' के बराबर है, एंड दैट इज 9.8 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या था कि अर्थ इनिशियली मास m, रेडियस r, सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 है, एंड न्यूमेरिकली वी नो इट इज gm/r²। फिर बोल रहा था कि अर्थ श्रिंक हुआ आधे रेडियस में, तो मास को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब उसी पॉइंट पे जहां अर्लियर पॉइंट पे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट किया था, उसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालिए। तो उसी पॉइंट का मतलब अगर रेडियस आधा हो गया, तो फिर उसी पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस बची है दैट्स r/2। फिर से मैंने माना कि यहां पे g' निकालना आपको, तो g' इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूमेरिकली होता है gm/डिस्टेंस स्क्वायर। इट इज gm, g में भी चेंज नहीं, m में भी चेंज नहीं, और डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, इसलिए सेंटर टू सेंटर यहां डिस्टेंस जो है दैट्स r/2 प्लस r/2, दैट इज यू आर लेफ्ट विद ओनली r, और उस पे स्क्वायर, अर्लियर भी gm/r², बाद में भी gm/r², तो वी कंक्लूडेड दैट g' इक्वल g, दैट्स 9.8 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, at what height in kilometer over the earth's pole the free fall acceleration decreases by 1%? तो very important question, तो this is a numerical based on variation of acceleration due to gravity, and you know that variation of acceleration due to gravity can be due to height। अगर आप surface of earth से ऊपर जाते हैं तो acceleration due to gravity change होता है, depth से भी change होता है, rotation से भी change होता है, shape से भी change होता है, and this question is at what height, that's variation of acceleration due to gravity due to height। तो acceleration due to gravity में जो वेरिएशन आ जाए हाइट की वजह से, एंड तो लिखा है एट व्हाट हाइट इन किलोमीटर अबाउट अर्थ's पोल द फ्री फॉल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस बाय 1%। तो 1% चेंज कहां तक आ जाए, मतलब आप जब सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे तो 1% चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस डिस्टेंस तक आएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल वेरिएशन, देयरफॉर यू कैन यूज दैट फार्मूला फॉर स्मॉल वेरिएशन के लिए, दैट g' इज इक्वल g इनटू 1 - 2h/r। आपको पता है कि एक्चुअली जनरल फार्मूला आपके पास है, उसे आप किसी भी हाइट तक निकाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल वेरिएशन है 1% का, तो स्मॉल वेरिएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा एट दिस टाइम ऑफ दैट प्रिपरेशन, आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूं, तो g' इज इक्वल, इट इज g इंटू 1 इज g माइनस 2gh डिवाइडेड बाय r। इसको मैं इधर कैरी करता हूं, तो इट्स 2gh डिवाइडेड बाय r इज इक्वल, ये g उधर ही है एंड ये इधर जाएगा, तो इट्स g', ये g में नीचे लाता हूं, तो यू आर लेफ्ट विद that twice of h divided by r is equal g minus g dash divided by, ये जो g है यहाँ, this g, ये मैं नीचे लाता हूँ। अब ये है this is the percentage change and it is given 1%, तो twice of h divided by r 1% दिया है, तो 1% means 1 by 100। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको हाइट निकालना है, तो r ऊपर जाएगा और ये नीचे बचेगा 200। r का वैल्यू आपको दिया गया है, दैट्स रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो 6400 डिवाइडेड बाय 200, 0 0 कट जाएगा, इट्स 232 सो इट शुड बी 32 किलोमीटर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मतलब जब आप 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे सरफेस ऑफ अर्थ से, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा 1%। कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, और ये इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस क्वेश्चन
question is important and is most expected this year in your entrance. That is, how high a man be able to jump. ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसमें आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में बोलता है कि एक आदमी कितना जंप ऊपर कर सकता है ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट के सरफेस पे जिसका रेडियस 320 किलोमीटर है, बट हैविंग सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ। तो डेंसिटी अर्थ के बराबर का है, डेंसिटी अर्थ के बराबर का है इफ ही जंप्स 5 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मतलब उसी एफर्ट से, मतलब एक आदमी सरफेस ऑफ अर्थ पे जंप करता है और सरफेस ऑफ अर्थ पे वो जंप करता है 5 मीटर, और सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर जंप करता है 5 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ इज प्रोवाइडेड 6400 किलोमीटर। बोलता है अगर उसी एफर्ट से वो ऊपर जंप करेगा उस प्लेनेट पे जिसका रेडियस 320 किलोमीटर है और उसकी डेंसिटी अर्थ के बराबर है, तो वहां पे उसका जंप की हाइट क्या होगा अगर उसी एफर्ट, मतलब उसी वेलोसिटी से। तो आपको पता होना चाहिए फॉर दीज क्वेश्चंस दैट जब ये जंपिंग के क्वेश्चंस आप डिस्कस करते हो तो यू शुड नो दैट फ्रॉम ग्राउंड, जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फायर करते हो विद सम वेलोसिटी, तो जो जिस हाइट तक वो जाएगा वो हाइट आपने पढ़ा होता है काइनेमैटिक्स में, दैट इज h इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो फ्रॉम दिस यू नो दैट u इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। तो किसी हाइट तक एक बॉडी जो जंप करता है उसका जो फॉर्मूला है ये आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा होता है, दैट्स u इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। नाउ इसमें 2 जो है कांस्टेंट है, अब अगर चेंज होता है g और h पे, ये सारा खेल जो है इस न्यूमेरिकल का है कि अगर g का वैल्यू चेंज होता है तो हाइट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो फॉर सच न्यूमेरिकल्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट रूट ऑफ दैट इज g1h1 शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ g2h2। तो मतलब अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लैनेट पे चेंज होता है तो हाइट अकॉर्डिंगली चेंज होगा अगर आप उसी एफर्ट से ऊपर की तरफ जंप करते हैं। उसी एफर्ट का मतलब आप उसी वेलोसिटी से जंप करते हैं, तो रूट यहां कैंसल आउट हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद अ फॉर्मूला दैट इज g1h1 इज इक्वल G2H2। अब हम उन पैरामीटर्स की बात करेंगे जो न्यूमेरिकल में दी है। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो कि डेंसिटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको पता है द फॉर्मूला इज 4/3 pi g rho r. So this is the formula for acceleration due to gravity on the surface of earth या on the surface of a planet, acceleration due to gravity in terms of density। आपने सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया प्लैनेट और अर्थ का डेंसिटी सेम है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इज 4/3 pi g rho r। ये आपने क्लास 11th में डिराइव किया होता है। अब अगर हम उस प्लैनेट की बात करें पहले, तो मैं लिखूं उसमें इट इज 4/3, इट इज पाई, देन इट इज g, डेंसिटी सेम है, तो उसका जो रेडियस है तो दैट्स r1, तो रेडियस इज r1। तो अगर रेडियस उसका r1 है तो वो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर, और उस पे हाइट हमें निकालनी है, तो h1 हमें उस पे निकालना है। तो अब हम अर्थ की बात करते हैं, तो अगेन इट इज 4/3, इट इज पाई g, देन इट इज पाई जी रो सेम है। अब रेडियस अर्थ का है 6400 किलोमीटर, मल्टीप्लाइड बाई उसकी हाइट जो है वो दी है 5 मीटर हाइट तक वो जंप करता है। नाउ टेल मी 4/3 पाई जीरो, 4/3 पाई जीरो, 4/3 पाई जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे जीरो के साथ काटे जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद h1 इज इक्वल इन दिस क्वेश्चन, h1 यहां पे है इट इज 640 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 32। तो ये हो गया 32 2 64, इट्स 20। सो h1 इज इक्वल 100 मीटर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये जंपिंग के क्वेश्चन आए, पहले आपको पता होना चाहिए काइनेमैटिक्स में जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जंप करता है विद सम वेलोसिटी, जो हाइट अचीव करता है, दैट फॉर्मूला इज h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। तो u हो गया रूट ऑफ 2gh। अब इस क्वेश्चन में 2 तो कांस्टेंट है ही, तो इस क्वेश्चन का सारा खेल जो है वो g और h के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में अगर वेलोसिटी दोनों प्लैनेट्स पे, अर्थ और प्लैनेट पे सेम है, तो ये प्रोडक्ट जो है दैट्स रूट ऑफ gh1 एंड रूट ऑफ gh2, इट शुड बी सेम। तो रूट कैंसिल होके g1h1 इज इक्वल g2h2। अब g जो था पहले मैंने प्लैनेट के लिए यूज किया, प्लैनेट का 4/3 पाई जी रो, डेंसिटी उसका अर्थ के बराबर है, तो अर्थ के दोनों का डेंसिटी सेम है। तो फिर रेडियस जो है प्लैनेट का, क्योंकि इट्स r, रेडियस यहां चाहिए, रेडियस उस प्लैनेट का 320 है और मैं मानता हूं वो हाइट h1 तक जंप करता है। फिर अर्थ की बात करेंगे तो इट
इट इज 4/3 पाई जी रो। अब रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट 5 दिया इसमें, कैंसिलेशन करके आपको आराम से जो है H1 मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज टू द बॉडीज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट इट्स इक्वेटर बिकम्स वेटलेस। तो द बॉडी सिचुएटेड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट इट्स इक्वेटर बिकम्स वेटलेस, मतलब एक बॉडी इक्वेटर पे वेटलेस हो जाती है व्हेन द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट्स एक्सिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने रोटेशनल डायनेमिक्स जो आपने पढ़ा होता है और ग्रेविटेशन को मिला दिया। तो बोलता है कि आपके पास एक बॉडी है जो वेटलेस होता है ऑन इक्वेटर। तो यू शुड नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरलाइज्ड फार्मूला जो है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ दैट इज g डैश इक्वल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, where फाई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ लैटिट्यूड। क्योंकि इक्वेटर की बात कर रहा है तो एट इक्वेटर, पहले इक्वेटर की अगर ये बात कर रहा है तो फाई इज 0, इक्वेटर पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 होता है तो 0, उसके बाद वेटलेस भी हो गया तो g डैश 0 दिया है तो 0 इज इक्वल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि cos ऑफ 0 इज 1। तो r ओमेगा स्क्वायर मैं लिख सकता हूं g के बराबर है, तो यहां ओमेगा स्क्वायर मेरा आ गया g बाई r। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने ओमेगा स्क्वायर निकाल के रखा। अब बोल रहा है कि व्हेन द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी अबाउट, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको पता है दैट काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट्स न्यूमेरिकली 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये आप रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ते हो। तो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच एक्चुअली इन्वॉल्व्स 2 चैप्टर्स इन इटसेल्फ, दैट इज ग्रेविटेशन एज वेल एज रोटेशनल डायनेमिक्स। तो इट इज 1/2। आप संभाल के, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। और ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर आपका g बाई आर के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आपका g बाई आर के बराबर है। तो यहां कैंसिलेशन में देखिए 2 कट गया और ये एक आर इसके साथ कट गया, तो यू आर लेफ्ट विथ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, तो यहां एम आर और जी है, इट इज एम जी आर डिवाइडेड बाई 5, इट इज एम जी आर डिवाइडेड बाई 5। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ग्रेविटेशन का पहला पार्ट है और दूसरा रोटेशनल डायनेमिक्स का है कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी अगर इक्वेटर पे लाई करता है और वो वहां वेटलेस होता है, तो वेटलेस होने का मतलब क्या है? इक्वेटर, इस फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में आप इक्वेटर वाली कंडीशन ड्रॉप करिए। इक्वेटर वाली कंडीशन क्या है सर? फाई जब 0 होगा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 मींस इक्वेटर की बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खुद 0 हो जाएगा, तभी तो वेट 0 होगा। और फिर इट्स g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक्चुअली वो आपको पहले ओमेगा स्क्वायर देना चाहता था और फिर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डायनेमिक्स में जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ड्रॉप किया सॉलिड स्फीयर का और फिर ओमेगा स्क्वायर इसमें ड्रॉप करके आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 to another of radius r2। again a very important objective for your NEET। ये आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, आप मान लीजिए आपके पास एक प्लैनेट है, आपके पास एक प्लैनेट है जिसका मास m है। तो उसके सेंटर से जो लैंग्वेज आपका क्वेश्चन कह रहा है, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m। तो एक सैटेलाइट है जो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मान लीजिए ये एक सैटेलाइट है जो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है और इस सैटेलाइट का मास दिया गया है m। तो m रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट ऑफ मास m, तो प्लैनेट का मास m है। टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, तो इनिशियली इसका जो रेडियस है दैट इज r1। अब आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू अनदर सर्कुलर ऑर्बिट, दूसरे सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस दिया गया है r2, एंड इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट r2 जो है इज ग्रेटर देन r1। तो सीधी सी बात है, अगर ये पहले इस ऑर्बिट में घूम रहा था और आप उठा के इसको दूसरे ऑर्बिट में ड्रॉप करेंगे जिसका रेडियस ज्यादा है, तो सीधी सी बात है आपको कुछ काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू शिफ्ट इट फ्रॉम हियर टू हियर। तो वर्क मींस काइनेटिक एनर्जी, वही आपसे पूछ रहा है। द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1, तो सेंटर से रेडियस r1 है, टू अनदर ऑफ रेडियस r2 वेयर r2 इज ग्रेटर देन r1। तो आपको ये जो है काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो वेरी सिंपल, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप इसमें जो है टोटल एनर्जी यहां देखिए इस ऑर्बिट में कितना है और फिर टोटल एनर्जी यहां पे। तो जो एडिशनल आपको एनर्जी प्रोवाइड करना है दैट इज चेंज इन द काइनेटिक दैट एनर्जी, हियर इज द चेंज इन एनर्जी इज दैट इज E फाइनल
माइनस ई इनिशियल. सो दिस शुड बी द कंसेप्ट. जब ये फाइनल ऑर्बिट में आएगा तो वहां की एनर्जी माइनस जब ये इनिशियल ऑर्बिट में था तो वहां की एनर्जी. तो एनर्जी जो आपको पता है एक सैटेलाइट का जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो होता है बराबर माइनस इट इज जी सैटेलाइट का पहले प्लैनेट का मास m, सैटेलाइट का मास m डिवाइडेड बाय इट इज 2r 2 यू नो एज पर द फॉर्मूला एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इट इज r1 फिर माइनस फॉर्मूला को और इट इज फाइनल तो यहां पे r2 आ जाएगा. ठीक है, पहले फाइनल है इट्स e फाइनल हियर तो फाइनल रेडियस और फिर माइनस फॉर्मूला का एंड देन अपना माइनस आ जाएगा फॉर्मूला में दैट इज माइनस g m डिवाइडेड बाय इट इज ट्वाइस ऑफ r1 ट्वाइस ऑफ r1. तो उस हिसाब से ये प्लस हो गया, प्लस में पहले लिखता हूं इट इज GMM डिवाइडेड बाय 2r1 माइनस इट इज GMM डिवाइडेड बाय 2r2. तो यहां कॉमन चीजें बाहर निकालिए इट इज GMM डिवाइडेड बाय 2 अंदर बचेगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. Very important. It is GMM divided by 2 1 by r1 minus 1 by r2. Last option is the answer of this question. Very important. देखिए आपके पास पहले एक प्लेनेट है जिसका मास m है तो एक सैटेलाइट है at a position at a distance from its center r1. फिर आपने उसको उठा के एक दूसरे ऑर्बिट में डाल दिया जिसका रेडियस r2 है एंड r2 इज ग्रेटर देन r1. आपसे पूछ रहा है एडिशनल एनर्जी कितनी लगेगी इसको शिफ्ट करने में. तो एडिशनल एनर्जी जो लगेगी तो दैट मींस देयर इज अ चेंज हियर है ना, एनर्जी चेंज जो आ जाएगा दैट चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल. तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है. फाइनल एनर्जी होता है माइनस GMM बाई 2r. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो पहले फाइनल में तो r2 आ जाएगा फिर माइनस फॉर्मूला का और फिर अपना वैल्यू में जो माइनस है माइनस GMM बाई इनिशियल रेडियस जो था 2r1 इसको प्लस बना के ये माइनस हो गया. फिर मैथमेटिक्स करके आपका आंसर जो है वो आपके सामने. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. If g is the acceleration due to gravity on Earth's surface, the gain of the potential energy of an object of mass m raised from the surface of Earth to height equal to the radius r of the Earth is. Again a very important question. बिल्कुल इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपने किया होना चाहिए. At this stage of preparation, you should know that formula. तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये है if g is the acceleration due to gravity on the Earth's surface, तो Earth's surface इसका रेडियस r है और acceleration due to gravity अगर Earth's surface पे g है. ठीक है, if g is the acceleration due to gravity on Earth's surface, the gain of the potential energy of an object of mass m raised from the surface of a height equal to the radius. आपने एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है तो आपने उठा के उसको एक हाइट पे लिया और वो हाइट जो है वो जो हाइट है वो r के बराबर है. तो आपको बोल रहा है इसमें जो है इसमें क्या निकालना है आपको raise it to the, from the surface of g is the acceleration due to gravity, the gain in the potential energy you have to calculate. Gain in potential energy. तो आपको बिल्कुल इसका फॉर्मूला इस स्टेज पे पता होना चाहिए. The change in potential energy is equal to mgh divided by 1 plus h by r. ये बिल्कुल हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं क्लासरूम्स में और एंट्रेंस में. तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, सीधी बात है यहाँ अलग पोटेंशियल एनर्जी है, अलग पोटेंशियल एनर्जी, वो सारा मैथमेटिक्स करके दिस द फॉर्मूला. अब इसमें h आपको डायरेक्टली दिया है इक्वल टू हाइट, दैट्स हाइट भी r के बराबर है तो डेल यू होना चाहिए बराबर इट इज mgr डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाई r. r बाय r 1 होता है तो डेल यू हो गया बराबर आपका mgr divided by 2 should be the answer of this question. mgr by 2 option number 3rd is the answer of this question. Again a very important question जो आपको सॉल्व करके जो है करना पड़ेगा for your entrance. Then a particle is projected vertically upwards the surface of earth radius re with a speed equal to 1/4 of the escape velocity. तो आपने एक पार्टिकल को सरफेस ऑफ अर्थ से फायर किया उस वेलोसिटी से, that velocity given here is दैट वेलोसिटी जिससे आपने फायर किया दैट इज 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी. तो आपने सरफेस ऑफ अर्थ से एक पार्टिकल को फायर किया तो दिस इज लेट अस कंसिडर दैट अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r. तो आपने एक पार्टिकल को फायर किया विद अ वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी से. तो सीधी सी बात है अगर आप एस्केप वेलोसिटी से फायर करोगे तो ये भाग जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा. आपकी वेलोसिटी 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी मतलब कम है, एस्केप वेलोसिटी से कम है तो ये किसी हाइट तक जाएगा और फिर रुक जाएगा और फिर वहां से वापस आ जाएगा. तो आपको इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है हाइट ही पूछा गया होगा, कितनी हाइट तक ये ऑब्जेक्ट जो है सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएगा. दिस शुड बी आवर क्वेश्चन. हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स
the surface of earth radius re with a speed equal to 1/4 of escape velocity. जब 1/4 of escape velocity है, मतलब escape velocity से कम है, तो ऑब्जेक्ट भागेगा कहां? किसी हाइट तक जाएगा, रुक के वापस गिरेगा. What is the maximum height attained? Very important question. तो maximum height attained from the surface, तो किस हाइट तक ये surface of earth से जाएगा? तो जब हम क्लास 11th में पढ़ाते हैं तो हम इसको पढ़ाते हैं by law of conservation of energy, और law of conservation of energy को ही सॉल्व करके एक शॉर्टकट इसमें डेवलप होता है, एक फॉर्मूला डेवलप होता है कि जो हाइट है वो हाइट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं by the formula n square r divided by 1 minus n square. तो ये फॉर्मूला है जो आपको वो हाइट देगी. मगर इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला में सर r तो पता है, दैट्स रेडियस. n क्या है? दैट n इज वेरी इंपॉर्टेंट. n इज एक्चुअली v गिवन, जो गिवन वेलोसिटी है जिसे आपने फायर किया, डिवाइडेड बाय v escape. V escape. Now V given is 1/4 of V escape divided by V escape. V escape चला गया तो N का वैल्यू 1/4 रह गया. अभी N आप इसमें ड्रॉप करिए तो रिमेंबर दैट इन दिस फॉर्मूला N इज V given by V escape. जो गिवन वेलोसिटी है उसको एस्केप से डिवाइड करो, आपको N मिल गया. आप इस फॉर्मूला में ड्रॉप करिए, H इज इक्वल तो 1/4 का स्क्वायर, देन इट इज R डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर. नाउ टेल मी वन थिंग, इट इज R by 16 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और फिर से यहां पे ये हो गया 1/16, 16 माइनस 1, इट इज 15 डिवाइडेड बाय 16. तो R by 16 मल्टीप्लाइड बाय, इट इज 16/15, 16 चला जाएगा. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट हाइट शुड बी R by 15 should be the answer. So R by 15 should be the answer. Very important question. देखिए इसमें आप एक चीज याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपकी वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो ऑब्जेक्ट एस्केप करेगा. अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है, जो कि इस क्वेश्चन में था, तो ऑब्जेक्ट किसी हाइट तक जाएगा, रुक के फिर वापस गिरेगा. और अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, एक तो एस्केप करेगा और फिर वो आपसे पूछेगा कि इन्फिनिटी पे उसकी बची हुई वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको भी आप जो है अपने इस वक्त के प्रिपरेशन में ऐड करिए. तो उसके बाद फिलहाल मैंने एक दिखाया, दूसरा आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, a satellite is orbiting around the earth, by what percentage should we increase its velocity so as to enable it to escape from the earth's surface? तो very important question, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए. It is actually a relation between escape and orbital velocity. You know that escape velocity होता है √2 times orbital velocity. ये हमने derive किया होता है कि escape velocity होता है, और हमारा क्वेश्चन वही है, escape and orbital related क्वेश्चन ही है. escape velocity है √2 times orbital velocity. We know this. Therefore हम लिख सकते हैं that escape by orbital velocity is equal to √2. तो फिर आपको बोलना है दैट एडिशनल आप उसमें कितनी वेलोसिटी दोगे. A satellite is orbiting around the earth, by what percentage should we increase its velocity so as to enable to escape it? तो escape जो है वो ऑर्बिटल से ज्यादा है, तो किस परसेंटेज से आप बढ़ा दोगे so that escape करेगा. तो दोनों साइड में माइनस कर दूंगा, उसमें खुद आपका चेंज आ जाएगा. इट्स VE by V0 minus 1, तो ये हो जाएगा √2 minus 1. तो ये बनेगा VE minus V0 divided by V0 is equal √2 minus 1 होता है 1.414 minus 1. तो ये हो जाएगा VE minus V0 divided by V0 is equal, it is 0.0414. तो परसेंटेज के लिए मैं आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा 100, तो ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि आपको परसेंटेज में ही आंसर पूछा है. तो इट इज 41.4% शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका वैल्यू कुछ बच्चों को जबानी याद होता है. तो एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन है. आपको बोल रहा है कितना एडिशनल है ना, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, बाय व्हाट परसेंटेज शुड वी इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, कितना परसेंटेज से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे सो दैट ऑब्जेक्ट एस्केप करे. सो मैंने एस्केप के नीचे ऑर्बिटल आया, सब्ट्रैक्ट किया सो दैट इट विल गिव दैट चेंज एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. द आंसर शुड बी 41.4%. तो ऑर्बिटल को अगर आप 41.4% वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो ऑब्जेक्ट जो है एस्केप कर जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the condition for a uniform spherical mass m of radius r to be a black hole is very important question, expected. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का है. बोलता है कि एक स्फीयर है आपके पास, एक स्फीयर है आपके पास जिसका रेडियस r है और जिसका मास m है. तो आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, मास m है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो ब्लैक होल बनेगा. पहला क्वेश्चन है सर व्हाट इज अ ब्लैक होल. ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी होती है जो इवन फोटॉन को भी बेंड कर देती है. मतलब लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है दैट्स कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे चलता है, अगर उसके पाथ में कहीं ब्लैक होल आ जाता है तो वो लाइट के रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को ब्रेक करके फोटॉन को मोड़ देता है और उसको भी जो है अपनी
अपनी तरफ खींच लेता है बिकॉज ऑफ ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसका मास पर यूनिट जो वॉल्यूम है, जिसको आप मास डेंसिटी कहते हैं, वो ह्यूज होता है। तो ब्लैक होल वैसी एंटिटी होती है जो फोटॉन को भी बख्शता नहीं है, उसको भी पकड़ता है। मतलब एस्केप वेलोसिटी जो है, वो एस्केप वेलोसिटी फॉर दिस स्फीयर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सो फॉर दैट स्फीयर टू एक्ट एज अ ब्लैक होल, एस्केप वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी, तो उस स्फीयर से फोटॉन भी नहीं भाग सकता। ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो किसी भी स्फीयर को ऑफ रेडियस r मास m अगर ब्लैक होल की तरह बिहेव करना है, तो उसका एस्केप वेलोसिटी उस सरफेस से एस्केप वेलोसिटी ग्रेटर और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए। अब मसला है एस्केप वेलोसिटी कितना होता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट्स रूट ऑफ इट इज 2gm डिवाइडेड बाय 2gm बाय r शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू c, क्योंकि आपने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा होता है अर्थ का, इट इज रूट ऑफ 2gm बाय r, वेयर r इज द रेडियस, हियर r इज द रेडियस। अब इस फॉर्मेट में इसको थोड़ा कन्वर्ट किया इसने, तो हम लिख सकते हैं 2gm डिवाइडेड बाय r, रूट के बदले 1/2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू c। सो दिस शुड बी द कंडीशन फॉर अ स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस r टू एक्ट एज अ ब्लैक होल। तो रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r raised to power 1/2 should be greater than c is the answer of this question. Question number next. The maximum and minimum distance of a comet from the sun are this and this. So this is a maximum distance and this is the minimum distance. If its velocity when it's nearest to the sun, जब ये nearest to the sun है तो वो 60 मीटर पर सेकंड है. What will be its velocity in meter per second when it is farthest? तो very important, it's law of conservation of angular momentum based. Actually Kepler's laws based question है ये, जिसमें पहले law of orbits that planets revolve around sun in elliptical orbits, and what is clear is that from first law that distance of the planet with respect to the sun is continuously changing. तो अगर distance of the planet, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब प्लैनेट्स अराउंड द सन घूमते हैं, तो कीपिंग सन एट वन ऑफ द फोकस, मान लीजिए सन यहां पे है, प्लैनेट पहले यहां पे था, तो उसकी स्पीड मान लीजिए v1, फिर प्लैनेट यहां पहुंचा तो उसकी स्पीड है v2, क्योंकि यहां डिस्टेंस चेंज हुई, यहां डिस्टेंस r1 थी, यहां डिस्टेंस r2, तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, ये फारदेस्ट डिस्टेंस है, तो यहां वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2। सर बाय विच लॉजिक? बाय द लॉजिक ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो L इज कांस्टेंट इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, क्योंकि टॉर्क जीरो होता है, जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। तो एंगुलर मोमेंटम खुद होता है बराबर mvr, तो हो गया बराबर कांस्टेंट। जब टॉर्क एब्सेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, इट मींस mvr इज कांस्टेंट। अब m तो हमेशा कांस्टेंट है, तो m को रखिए आप, तो ये बनेगा v1r1 शुड बी इक्वल टू m, इट इज v2r2। mm कैंसिल आउट होगा, तो यू आर लेफ्ट विद v1r1 इज इक्वल टू v2r2। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स लाइक दिस। और इस फॉर्मूला से क्या क्लियर हुआ कि अगर डिस्टेंस चेंज होती है, जैसे यहां पे r1 से r2 डिस्टेंस चेंज हुई, तो v1 से v2 चेंज डिस्टेंस होगी। और ये प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, इट मींस अगर r1 कम है तो v1 ज्यादा होना चाहिए, और अगर r2 ज्यादा है तो v1 कम होना चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वी कॉल दिस एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस, तो मान लीजिए दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस, तो मैं मैक्सिमम ये पार्ट मानूंगा आप, इट इज v2r2, सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस। उस हिसाब से अब आप देख लीजिए आप, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस आप कमेंट फ्रॉम द सन आर दिस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया r2, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मैं लूंगा आप r2 राइट साइड जो है, तो मैं लिखूंगा v2r2 इज इक्वल टू v1r1, तो एज पर द डायग्राम। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दिया है बच्चों, दैट इज 8 into 10 raised power 12, that this is the maximum distance, and minimum distance आपको यहां से, यहां मैं इक्वलिटी डाल के रखता हूं, मिनिमम डिस्टेंस भी दिया गया है, दैट इज 1.6 into 10 raised power 12 मल्टीप्लाइड बाय, अब इफ द वेलोसिटी व्हेन द नियरेस्ट टू द सन, तो नियरेस्ट डिस्टेंस की वेलोसिटी दी है दैट इज 60, देन द वेलोसिटी एट द फारदेस्ट, तो आपको rv2 निकालना है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। देखिए 10 raised power 12 पहली फुर्सत में उड़ा दो, तो आपका v2 जो है वो हो जाएगा 1.6 into 60 डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया आपका इट इज इट्स 0.2 जो है 0.2 आ गया, और 0.2 तो 6 2 12, क्योंकि 10 उसके साथ कट जाएगा, तो 12 मीटर पर सेकंड शुड बी द वेलोसिटी, 12 मीटर पर सेकंड शुड बी द वेलोसिटी। तो ऑप्शन 1 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द प्रोडक्ट v1r1 इज इक्वल टू v2r2। इससे ये क्लियर हुआ, जब डिस्टेंस बदलती है तो वेलोसिटी भी बदलती है। अब जब फारदेस्ट था, तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो तो ये वेलोसिटी कम होगी, इसीलिए फारदेस्ट की जगह वेलोसिटी कम हुई, और जब नियरेस्ट था तो वेलोसिटी ज्यादा थी। देखिए वेलोसिटी नियरेस्ट पे 60 थी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 6 r above the surface of Earth, r being the radius of Earth. The time period of another satellite of 2.5 from the surface. Actually IIT का क्वेश्चन है, but very important from this chapter also. तो इसका solution जो है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, आपको बोल रहा है कि आपके पास पहले अर्थ है जिसका रेडियस r है, आपके पास अर्थ है जिसका रेडियस r है, मास m है. यू आर हैविंग अर्थ, आप मास m एंड रेडियस r. तो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट ऑफ 6 r. तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक है जिसका हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से दिया गया है 6 r. तो अगर आपसे कोई पूछे सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी हाइट है, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल दैट, सो दिस इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. तो मैं लिखूं इसको जीएस. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 6 r डिस्टेंस पे है, तो हाइट 6 r है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी डिस्टेंस है, दैट इज 7 r. तो r बीइंग द रेडियस ऑफ अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट ऑफ 2.5 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज. तो दूसरा सैटेलाइट जो है वो इस हाइट पे, देखिए दूसरा सैटेलाइट कहीं यहां घूम रहा है, दूसरा सैटेलाइट कहीं यहां घूम रहा है, और उसकी जो हाइट दी गई है, उसकी जो हाइट दी गई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 2.5 r. तो टू डिफरेंट सैटेलाइट्स. तो ये वो सैटेलाइट है, ये मान लीजिए आप वो सैटेलाइट है जिसका आपको टाइम पीरियड निकालना है. तो ये हमारा न्यूमेरिकल है. तो पहले जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट दी है 6 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सेंटर से होगी 7 r. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेविटेशन में डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर. तो इसी तरह दूसरा सैटेलाइट है एट अ हाइट ऑफ 2.5 r. तो सेंटर से डिस्टेंस जो है दैट इज 3.5 r. तो हमें बोल रहा है इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा. तो केपलर्स थर्ड लॉ से सॉल्यूशन में वी नो दैट एज पर केपलर्स थर्ड लॉ दैट इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³. दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेट्स के लिए भी ट्रू है और एज इट इज सैटेलाइट्स के लिए भी काम करता है. तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³. तो पहले हम जियोस्टेशनरी की बात करते हैं. आपको पता होना चाहिए जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो 7 r की हाइट पे ही होता है, दैट इज 42,400 किलोमीटर. 7 r होता है बराबर 42,400 किलोमीटर, और उसका टाइम पीरियड ऑफ जो रिवोल्यूशन होता है दैट्स 24 आवर्स. तो जियोस्टेशनरी लिखने का मतलब ही है उसने आपको 24 आवर्स टाइम पीरियड दे दिया. तो ये हो गया 24 का स्क्वायर, देन इज इक्वल, क्योंकि मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, r जो है उसका दैट इज 7r का क्यूब, देन डिवाइडेड बाय, अब उस सैटेलाइट की बात, तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है. लेट द टाइम पीरियड बी t एंड देयरफॉर t², और जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज 3.5 r का दैट इज होल क्यूब. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देख लीजिए आप इधर, यहां पे क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इट इज 24 डिवाइड बाई t का होल स्क्वायर. मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, और यहां मैं लिख सकता हूं 7r डिवाइड बाई 3.5 r का होल क्यूब. तो r कट जाएगा, 3.5 इंटू 2 होता है 7, ये हो गया 24 बाई t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8. जब ये 8 हो गया तो फिर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स इट्स 24 बाई t इज इक्वल टू 2√2. तो यहां से क्लियरली आपको t मिल जाएगा, और t कितना मिलेगा, t इज इक्वल 24 डिवाइडेड बाई 2√2. तो इट्स 2 12s are 24, 2 12s are 24. तो यू आर हैविंग t हियर, तो मैं यहां लिख देता हूं t इज इक्वल टू इट इज 12 बाई √2. मगर सर ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं, रैशनलाइजेशन जिसको आप कहते हो, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं. अब √2 2 होता है, और 2 6 are 12, so time period should be 6√2 hours should be the answer of this question. 6√2 hours should be the answer of this question. तो ये इसका आंसर है. वेरी इंपॉर्टेंट, केपलर्स थर्ड लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. A satellite is launched in a circular orbit of radius r around the earth. A second satellite is launched into an orbit of radius. तो पहले एक सैटेलाइट रेडियस r पे है, और फिर एक सैटेलाइट 1.01 r पे आपने उसको फायर किया है. तो बहुत कम चेंज है यहाँ. A satellite is launched in a circular orbit of radius r. पहले सैटेलाइट r डिस्टेंस पे अराउंड द अर्थ, फिर एक दूसरे सैटेलाइट को आपने लॉन्च किया दूसरे ऑर्बिट में जिसका रेडियस 1. तो चेंज जो है बहुत स्मॉल है. द पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्गर देन दैट ऑफ फर्स्ट. तो जो दूसरा सैटेलाइट है जो उसका टाइम पीरियड है वो लॉन्गर होगा फर्स्ट से, बाय व्हाट परसेंटेज, दैट्स आवर क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट. तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन जो है दैट इज एज पर केपलर्स थर्ड लॉ, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जो मैंने अर्लियर न्यूमेरिकल में भी यूज किया, एंड देयरफॉर t इज प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर 3/2. क्योंकि यहां पे डिस्टेंस में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसमें वेरिएशन बहुत कम है, तो हम एरर मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एरर्स हम आपको 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशंस विद एरर एनालिसिस में पढ़ाते हैं. तो एरर के हिसाब से सो del t
बाई टी जो है, क्योंकि मगर एरर मेथड तब यूज आप करते हो जब चेंज बहुत कम हो, तो डेल टी बाई टी इज इक्वल 3/2 नीचे आएगा, आपने पढ़ा होगा, देन इट इज डेल आर बाई आर, देन अगर परसेंटेज के लिए लाना है तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 100, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो नाउ दिस परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल, इट इज 3/2, नाउ डेल आर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, जो सेकंड लाइट का सैटेलाइट का डिस्टेंस है और जो इनिशियल सैटेलाइट का डिस्टेंस है, तो ये इससे ज्यादा है। चेंज कितना है सर, क्योंकि डेल आर मींस चेंज, तो इट इज 1.01 माइनस 1, इट इज 0.01 डिवाइड आर, 0 दिस इज द चेंज, डिवाइडेड बाय दैट इनिशियल आर मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए। आर यहां कट जाएगा, ये बनेगा 10 रेज़ पावर -2, इट इज 10 रेज़ पावर 2, ये भी यहां से कट जाएगा, 3/2 होता है डायरेक्टली इक्वल टू 1.5% शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 1.5%। ये क्वेश्चन हमने एरर एनालिसिस से इस बुनियाद पे किया कि इसमें जो चेंज था ना डिस्टेंस में, वो बहुत स्मॉल था, और तब एरर मेथड बेस्ट मेथड रहता है अगर आपको चेंज निकालना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। तो आपके पास इस क्वेश्चन में दो बॉडीज है जिनका मास है m and 4m and they are separated by a distance r, the gravitational potential at a point on the line joining them। आपको एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है where the gravitational field is 0, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। मान लीजिए वो ये पॉइंट है जहां पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं मानता हूं ये वो पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से कितनी है, अगर ये डिस्टेंस पता चले तो r माइनस x करके इस मास से भी वो डिस्टेंस पता चलेगी, क्योंकि डिस्टेंस इज अ मस्ट हियर। तो आपको पता होना चाहिए एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन दैट दिस डिस्टेंस कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड एंड इज इक्वल टू, जिस मास से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो उसका रूट ऑफ m, उसी का रूट डिवाइडेड बाय टोटल मास का रूट, इट्स रूट m प्लस रूट ऑफ 4m, दूसरा मास है आपको, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल डिस्टेंस। तो दिस इज द वे। अगर आप इस मास से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालते तो ऊपर लिखते रूट ऑफ 4m, नीचे बिल्कुल ये आता रूट ऑफ m प्लस रूट ऑफ 4m मल्टीप्लाइड बाय r। इससे आपका जो है जल्दी डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं थ्रू आउट रूट m से डिवाइड करूंगा, रूट m कट गया, रूट m यहां डिवाइड, यहां पे भी रूट m डिवाइड, यहां पे भी रूट m उड़ गया, तो ऊपर बचा r डिवाइडेड बाय, यहां रूट m खत्म हुआ तो यहां बचा 1 प्लस, यहां रूट m पहले कैंसिल हुआ, रूट ऑफ 4 is 2, तो यहां से वो डिस्टेंस हो गई r/3। तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गई, और ये डिस्टेंस x जो है अब दिस इज r/3। अब यहां से कितनी डिस्टेंस है, r माइनस r/3, इट इज 2r/3। खेल खत्म। तो इस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, मगर क्वेश्चन में दिया गया था उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, वहां ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर इस पॉइंट पे 0 है तो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, वो मैंने निकाली बाय दिस वे। अगर आप इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालते तो आप ऊपर सिर्फ लिखते रूट ऑफ 4m, बाकी बिल्कुल यही आपको मिल जाता। अब एक मास से जब आपने डिस्टेंस निकाले तो दूसरे से r माइनस r/3 करके 2r/3। अब इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधे आप वैल्यू ड्रॉप करिए और जो है सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से आपका काम हो जाएगा। तो यहां से इस मास से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, दैट्स माइनस gm, मास m है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज r/3। फिर दूसरे मास का दैट इज माइनस अगेन, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो दूसरे मास का हो गया माइनस g इंटू 4m, क्योंकि दूसरा मास 4m है, डिवाइडेड बाय 2r/3। तो Vp हो गया बराबर माइनस 3gm डिवाइडेड बाय r, देन इट्स माइनस, इट इज 4 3s are 12 gm डिवाइडेड बाय 2r। तो यहां कॉमन चीजें बाहर निकालते हैं हम, तो यू आर लेफ्ट विद इट इज gm डिवाइडेड बाय r, और मैं 3 भी बाहर निकाल के रखता हूं, तो अंदर क्या बचा, तो माइनस पहले ही मैं बाहर निकालता हूं, माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, तो अंदर बचा यहां पे 1 और फिर यहां पे प्लस, क्योंकि माइनस बाहर निकाला, और ये बचा 4, तो इट इज 4 + 1 इट्स 5 हियर, और यहां पे 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 2s are 4, 2 + 1 is 3, 3 3s are 9, so Vp is equal to -9, it is
m divided by r should be the answer of this question. minus gm minus 9gm divided by r, option number third. तो पहले उस पॉइंट तक डिस्टेंस निकालना था, तो उसके लिए उसने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो आप, ये मैंने आपको एक तरीका दे दिया. उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से आप वैल्यूज ड्रॉप करके ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the ratio of escape velocity at earth ve to the escape velocity at a planet. तो आपको एक्चुअली ratio of escape velocities निकालनी है, तो you have to calculate ve divided by vp. This is our question. You have to calculate the ratio of escape velocities whose radius and mean density are twice as that of earth. तो जो planet का radius है वो twice of radius of earth है, और जो density of that is density of planet है वो भी twice of density of earth है. So अगर अर्थ का रेडियस r है तो प्लैनेट का रेडियस 2r है. अगर अर्थ का डेंसिटी रो है तो प्लैनेट की डेंसिटी जो है दैट इज 2 टाइम्स रो. अब आपको पहले फॉर्मूला जो एस्केप वेलोसिटी का है इन टर्म्स ऑफ r एंड रो ही लाना पड़ेगा. देखिए आपने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एज इट इज रूट ऑफ 2gm/r. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप सबको पता होता है. मगर अगर हमें इसको डेंसिटीज में लाना है तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल रूट ऑफ इट्स 2g. मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी, मैंने इसको डेंसिटी में लाया, इनटू वॉल्यूम दैट इज 4/3 pi r cube divided by r. r और r एक कट गया, you are left with a formula that is 4 2s are 8 divided by 3. It is g then rho, it is 0 and then it's pi r square. This is the formula you are left with. तो ये आपका फॉर्मूला जो है एस्केप वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन रेडियस एंड डेंसिटीज में ही है, तो मैं लिखूंगा एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू आर स्क्वायर. डेंसिटी इनटू आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया. अब आप लिखिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल. तो मैं एक कॉमन रूट लूंगा, तो प्लैनेट जो है अर्थ का नीचे आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर आ जाएगा. तो अर्थ का डेंसिटी मैंने रो लिया था, अर्थ का रेडियस मैंने आर लिया था, तो आर स्क्वायर ही आ जाएगा. प्लैनेट के केस में क्या होगा, प्लैनेट का जो डेंसिटी है वो हो गया 2 रो मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज ट्वाइस, रेडियस ट्वाइस है तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर. 2r का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो गया रो आर स्क्वायर, नीचे भी हो गया रो आर स्क्वायर, मगर नीचे हो गया 2 2 4 2 8, तो ये बना 1/√8. 1/√8 होता है 1/2√2 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 1/2√2 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. पहले मैंने फॉर्मूला को डिजाइन किया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस. आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी का, और प्रोपोर्शनलिटी ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. प्लैनेट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड दैट प्लैनेट, अर्थ का चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अर्थ का डेंसिटी मैंने रो लिया था, अर्थ का डेंसिटी रो है और रेडियस आर है. प्लैनेट का डेंसिटी भी दुगना है और रेडियस भी दुगना है. फिर आर स्क्वायर कट गया, रो कट गया, ये आ गया इट्स 2 2 4 2 8. 1/√8 इज 1/2√2 एंड देयरफॉर आंसर आपके सामने. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. देन तो ये एक रिलेशन है जिसमें आपको क्या करना है कि आपको हाइट h और डेप्थ d पे एक्सेलरेशन सेम है. इट इज गिवन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एट अ डेप्थ d. तो एक्सेलरेशन हाइट पे और एक्सेलरेशन डेप्थ पे बराबर है, इट इज गिवन. अब हाइट की एक्सेलरेशन फॉर स्मॉल हाइट्स के लिए मैं लिख सकता हूं दैट g इज इक्वल g इंटू 1 - 2h/r इज इक्वल टू डेप्थ के लिए होता है g इंटू 1 - d/r. तो ये आपने बिल्कुल पढ़ा होता है, क्लास 11th में डिराइव किया होता है, एंट्रेंस में पढ़ा होगा. हाइट के लिए ये फॉर्मूला है और डेप्थ के लिए ये है, क्वेश्चन में दिया है वो बराबर है, तो उस हिसाब से अब g जो है वो कट जाएगा, 1 जो है वो कट जाएगा, माइनस b कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ 2h/r इज इक्वल d/r. r b कट जाएगा तो 2h इज इक्वल d. तो यहां पे 2h d के बराबर है. हाइट आपको 1 किलोमीटर दिया है तो इट्स 2 × 1 इज इक्वल d. तो d शुड बी 2 किलोमीटर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो d शुड बी 2 किलोमीटर. मतलब हाइट 1 किलोमीटर, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो फिर अर्थ के नीचे टनल खोद के 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो ऊपर 1 किलोमीटर और नीचे 2 किलोमीटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होगी. इसका यह मतलब है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज
Two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact their spaceship the two wheel. देखो two astronauts are floating in gravitational free space. ये इसका बड़ा important point है. अगर gravitational free space है तो gravitational free space means g is 0. तो वहां पे पहले acceleration ही नहीं है, gravitational free space है. अगर gravitational free space से दो astronauts ने लॉस किया contact अपने spaceship से, तो जिस पोजीशन पे वो जुदा हुए वही पोजीशन पे वो रहेंगे, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, जहां पे वो थे वो वहीं पे रहेंगे और फ्लोट करते रहेंगे. अगर एक्सेलरेशन होता तो मासेस की वजह से वो अट्रैक्ट करते, उनमें एक्सेलरेशन आ जाता और उस एक्सेलरेशन की वजह से वो अट्रैक्ट करते. बट यहां पे ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है और उन्होंने लॉस किया कंटैक्ट अपने स्पेसशिप से. द टू विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, बिल्कुल गलत है. मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल गलत है. विल रिमेन स्टेशनरी, बिल्कुल ये भी गलत है. की फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल ये सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल स्पेस में ना तो अट्रैक्ट और ना ही वो रिपल करेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. The kinetic energies of a planet in an elliptical orbit about the sun. थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया. मैंने बोला द कंसेप्ट इज VR is equal constant. Actually L is constant and from that L जब constant है तो VR constant है. मतलब जब R चेंज होगा तो V चेंज होगा. और मैंने बोला जब R स्मॉलेस्ट होता है, जब R कम होता है तो V मैक्सिमम होता है. अगर R कम है तो V मैक्सिमम है, तो अगर R कम है तो V मैक्सिमम है, और अगर V मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. तो आपको बोल रहा है इस डायग्राम में द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट एट पॉइंट्स ए बी एंड सी. तो ए बी एंड सी पॉइंट्स है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी के, यहां पे के बी है, यहां पे के सी है. तो आपको क्या बोल रहा है, एज वी परपेंडिकुलर दिस, देन आपको बोलना है इन काइनेटिक एनर्जीज में रिलेशन क्या है. तो मैं फिर से बोल दूं, जहां डिस्टेंस कम वहां वेलोसिटी ज्यादा. तो यहां सबसे कम डिस्टेंस, जब यह सबसे कम डिस्टेंस तो यहां सबसे ज्यादा वेलोसिटी, यहां सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी यहां ज्यादा और सबसे कम ये. तो के इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन KC, K is greater than KB is greater than KC is the answer of this question. ये बिल्कुल फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का जो मर्जर है ये क्वेश्चन का, कि फर्स्ट लॉ ने कहा था planets revolve in elliptical orbits keeping sun at one of the focus, and फर्स्ट लॉ ने कहा था distances of planets continuously change. तो ये नियरेस्ट पोजीशन है, ये फारदेस्ट पोजीशन है. नियरेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा, फारदेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कम. जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जहां वेलोसिटी डिस्टेंस ज्यादा वहां वेलोसिटी कम. उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जीज का ऑर्डर आपके सामने. Question number next. A body weighs 200 Newton on the surface of Earth. How much will it weigh halfway down to the surface center of Earth? Again a very important question. तो बोलता है on the surface of Earth, आपके पास surface of Earth पे एक बॉडी का जो वजन है that is 200 Newton. तो surface of Earth पे उसका वजन जो है वो 200 न्यूटन है. How much will it weigh halfway down to the center of Earth? तो अगर आप आधा मतलब आपने टनल खोदी और आपका डिस्टेंस जो है हाफ वे है, हाफ वे मींस रेडियस बाय 2 के बराबर, मतलब टोटल तो यहां से यहां तक रेडियस r है, तो आप हाफ वे नीचे चले गए, तो आपने जो डेप्थ ली वो r बाय 2 के बराबर है. तो वहां इसका वजन कितना होगा. तो जब आप अंदर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए दैट g डैश इक्वल g 1 माइनस d बाय r. तो दिस इज द फॉर्मूला जो डेप्थ के लिए वैलिड है, जो आपको एक नया एक्सेलरेशन, क्योंकि जब आप यहां पे आ गए तो आप पे एक नया एक्सेलरेशन है और आप डेप्थ वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. तो आपका g डैश जो है उस डेप्थ पे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि जब एक्सेलरेशन पता चलता है तो वेट होता है m इंटू एक्सेलरेशन. तो फिर g देन इट इज 1 माइनस d, आपका r बाई 2 दिया है तो इट्स r बाई 2 इंटू r कट जाएगा तो g डैश इज इक्वल g, देन इट इज 2 1 जा 2 माइनस 1, इट इज 1 बाई 2. तो आपका एक्सेलरेशन ही पहले आधा हो गया. अगर आपका एक्सेलरेशन ही आधा हो गया जब आप आधे डिस्टेंस पे गए तो आपका वेट खुद आधा हो जाएगा. तो अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे आपका वेट 200 न्यूटन है तो हाफ वे पे आपका 100 न्यूटन आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन आधा हो गया. और वेट किसी भी बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. अब अगर एक्सेलरेशन आधा हो गया तो वेट खुद आधा हो जाएगा. एंड देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. The work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to the radius of earth. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपको बोल रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से जिसका रेडियस r है, अगर एक ऑब्जेक्ट को आपको सरफेस ऑफ अर्थ से लेना है तो हाइट विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ r, तो आप इसको जब हाइट h पे लेंगे इक्वल टू द रेडियस ऑफ r, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा. दैट इज अर्लियर क्वेश्चन. इससे पहले भी मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ. यहां से यहां तक जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट्स
that's work done, and that work done is equal to actually change in potential energy, and the formula for that is mgh divided by 1 plus h by r. Very important formula. आप देखिए नीट में बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए, हो सकता है इस बार भी पूछ ले. तो w इज इक्वल टू mg, h आपको r के बराबर दिया हाइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस h r के बराबर है, r कट गया तो ये 1 बना, तो इट इज mgr divided by 2 should be the work done. So work done is mgr divided by 2. So this is the answer of this question. Thank you.